Hello. Hello. Hi Vijay, how are you? I'm fine, sir. How's you? Okay, I'm also good, Vijay. Vijay, I'm not able to see you. I think your video is Uh, off. Switch on your, your video, right? it's fine now? Yeah, Vijay, it's good. Yeah. So, Vijay, I received some information from Rajat sir about you that you are in Dubai right now, Yes, sir. I'm in Dubai right now. and you are willing to prepare for IELTS general training, and then you want to go abroad, whichever country you want to Yes. go, right? So, Vijay, you have subscribed to our English Guru demo class, in which we will be giving you a 7 day, 30-minute conversation facility, right? Right. So, today I'm talking to you, Mm-hmm. as well as I'll be taking your queries regarding IELTS preparation that you might be having. That's why I'm communicating. And if you have any other queries that's related to English learning or IELTS preparation, you can ask me. Mostly, I'm having that problem in listening and writing only. Listening and Yeah, writing. there is some speaking problem also because if there is a cue card, I'm not able to elaborate it in that way what they Okay. want. So, yeah, that's the problem. Okay, Vijay. Before I start giving my perspective over the questions that you are asking, I need to know some of the details about you. So you are in Dubai right now, but in India, where are you from? In Delhi, Delhi. Okay, you're from Delhi. And for how long have you been there in Dubai? I was here for 4 years, but I lost my job. Then I came again. Now Okay. I'm on visitor visa. Hopefully, I'll get my job next week. Okay. And what's the plan? Which country do you want to go Yeah, after I'm your IELTS? planning to get the Canadian PR. And you want to go for express entry process, right? Yes, express entry. Yes. So have you checked your CRS score in case you get CLB 97778? What will be your CRS score? Yeah, if I get 8777, my CRS will be around 469. 469. That's a Yes. pretty impressive score. If you Yes. can get it, definitely sooner or later you will get the invitation in the pool. Okay, okay, that's Yes, good. yes, yes. So have you ever attempted IELTS examination Not academic yet, for sir. JT? Not yet. That's my first time. Yeah. Okay. Have you received any formal training from any institution, physical, digital Mm, kind of thing? yeah, I got one. I remember that it's a 1 month training from Eton. Okay. Yeah, and that time I got intermediate B1, I think B1. Okay, that's good. So let's be little precise. Do Mm. you exactly know where you stand in terms of band score in individual module? I don't know, but it will be somewhere around 5.5 or 6, not Okay, more than that. 5.5 or 6. As you said that I face problem in listening. So what kind of score do you usually get when you give a listening test? Yesterday I got 20 correct question out of 40. 20. That means 5.5 band. Okay. Yeah. And when you do a reading test, then how many answers are correct? That again I gave that test and I got 30 correct out of 40. 30 out of 40 Yes. according to the GT criteria. GT, yeah. It's around 6 band, because 6 minutes. GT reading assessment is bit different than academic Yeah, reading yeah. assessment. Okay, so 6 in reading and 5.5 in listening. And have you ever received the feedback on your speaking and on your writing, that Mm, what's the band value? no. So no I teacher didn't gave you evaluate the this. feedback. As you No. mentioned that I received some classes from an institution for a month. So they didn't tell Yeah. you about your writing That was score. speaking class. That was only speaking class and some if you have some means tenses problem or like vocabulary. So yeah, that was the class only, not writing or something. Okay. Okay, It okay, was for a speaking course only. okay. Then I'll do one thing right now, Vijay. I'll ask you a couple of questions, right? Okay. And on the basis of the answers you provide, the responses you give me, I'll Mhm. tell you your band score value right now in speaking at least. Okay. Okay. And in that sense, speaking and writing are kind of similar,
because for that thing you need content, ideas, you need vocabulary, you need grammar. In writing you just write it, and in speaking you have to speak it. So this is the only difference. So if you have a 6 band level in your speaking, it means that you have the similar band level in your writing as well. Okay. So Vijay, maybe you are using background uh, remover software or I don't know something. how to remove this. Yeah, still it's good. Your background is looking good. It's came. I Yeah, don't know how it it's came. pretty impressive. Okay, what's your job over there? What's your profession? Uh, I'm in a finance department and handling export documentation. Okay, okay. And what's your qualification? I'm masters from commerce, masters in commerce. MCOM, right? Yeah, I'm com. Yeah, and Okay. I also have that PG diploma PG in diploma. international business. IB. So you did it from India only? Yeah, all from India. Okay, that's good. So, okay, let me ask you the questions that may be asked in the IELTS Sorry. examination. Okay. Right. So, do you think that people nowadays spend more money compared to past? Well, I think yes, because the cost of living is growing every day, and earning also growing with this. So I think they are spending more money than they were spending they were spending earlier, and yeah, now the people have a digital platform also, so they can spend more money, and other on the other hand, they also have credit cards facility. Uh, so yeah, it gave more freedom to, you know, when go to the market and shop whatever they want, whatever they can do with the Mhm. credit cards, and yeah, uh, That's it. yeah. Okay. Yeah, you I'm you you should I'm give quite a conclusive gesture when you answer such kind of questions, that so that the examiner or maybe the interviewer get to know that your answer is over now. Okay. okay. So what are some of the factors or reasons uh, that causes people to spend more money or maybe go for shopping quite often? What are some of the factors? Some see, uh, earlier people don't have that much of freedom in the market. It means they don't have like uh, open platform. Now we have Flipkart, Amazon, that digital platforms, and earlier we don't have that platform. Now people order anything from home. So I think they can do any shopping from anywhere, anytime, and yeah, I think that's digital platform giving more freedom Okay, to okay. us. We Yeah. can buy So, anything. so if you have to give a precise answer, you will say availability of e-commerce websites are Yes. encouraging people to spend more frequently. Okay. Yeah. To precise. Okay, Vijay, now I'll not ask more questions. I'll ask questions, but let me give my feedback to you. Uh, with this kind of performance, you can get 6 band right now in your speaking, 6 band in your Mhm. speaking, and 6.5. This is the range. And where the problem is, you're not quite fluent. You are taking time in thinking of the idea, in thinking of the data, what you should speak. You were Yes. seeming a bit confused. You were looking here and there. Words were not coming smoothly Mhm. on your tongue. So this is one criteria. Fluency is one criteria in speaking that's required. Second, grammatically, to a large extent, your grammar is good, but at some places you commit grammatical mistakes. For example, you were talking about earlier, people did not have, people did not have these digital platforms, and they had to go to the physical shops to buy certain things. But now they have Amazon, Flipkart, these websites,
and they can show up quite conveniently. So you were not using the right maybe verbs for the timing for past and for present, but this is a very minor weakness that you have. So this is the second thing. Third, you need to use a better range of vocabulary, right? That will also boost your band score, and better grammatical range. Now, there are two terms: grammatical accuracy and grammatical range. So what do we mean by accuracy? Whichever sentence formation you are coming up with, that should be accurate. Okay, अगर मुझे continuity में बोलना हो, so I am spending more money, that's continuity, मैं spend कर रहा हूं. अगर मुझे बोलना हो मैं generally spend करता हूं बहुत सारा पैसा, I spend more money. मैंने past में spend किया था, I spent a lot of money. So ये है आपकी accuracy. Range क्या होती है कि एक तरह का सेंटेंस में मल्टीपल वेज में बोल पाऊं. एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं आपको. पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चों के खान पान पे ध्यान दें. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट. अब इसी सेंटेंस को किसी और तरीके से बोलते हैं. द मेन प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट्स इज टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द ईटिंग हैबिट ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो उसी बात को इस तरीके से बोला. इसको तीसरे तरीके से बोलता हूं. Focusing the eating habits of their children should be the utmost priority of parents. So are you getting my point? किसी में वो चीज आगे है, किसी में वो चीज पीछे है, किसी में वो चीज बीच में है, किसी में सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ और है, किसी में कुछ और है. इसे कहते हैं रेंज. सो दैट्स ऑल्सो वन क्राइटेरिया जो राइटिंग में भी चाहिए और स्पीकिंग में भी चाहिए. तो एक्यूरेसी भी चाहिए ग्रामर की और रेंज भी चाहिए. ऐसे ही वोकैबुलरी भी होती है. अब जो अच्छी वोकैब यूज करें, एक तो वो सही यूज करें, सही जगह पे यूज करें, वो वहां फिट भी बैठनी चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में, राइट. और दूसरा फिर वो अच्छी रेंज भी यूज करें आप वोकैबुलरी की. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहना कि मुझे थोड़ी उलझन है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे थोड़ी उलझन है, आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड. क्या और कोई टर्म है आपके पास? आई एम बिट कंफ्यूज्ड. नहीं, बिट हो सकता है. क्वाइट के लिए, कंफ्यूज के लिए कोई और टर्म है? चलो मैं अब रेंज देता हूं आपको. आई एम इन डायलेमा. डायलेमा इज अ टर्म. डायलेमा, दुविधा, ठीक है ना. आई एम इन एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी दो राहा, दो चीजें हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कौन सी पिक करनी है. सो आई एम इन डायलेमा वेदर आई शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा. आई एम इन डायलेमा. आई एम इन डायलेमा वेदर आई शुड गो फॉर माई स्टडी वीजा और डायरेक्टली फॉर PR. So this is the range in the vocabulary. ऐसे ही एक होता है कि मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, तो बताओ इंग्लिश में क्या कहोगे आप? I challenges many. I faced many challenges. Many challenges. क्या और कोई तरीके से बोल सकते हो इसी बात को? चलो, अब यहाँ पे फेस के लिए मैं आपको देता हूँ. एनकाउंटर वर्ड आप यूज कर सकते हो. Yes, encounter. आप confront वर्ड यूज कर सकते हो. I confronted many challenge. अब चैलेंज के लिए बताता हूं. प्रॉब्लम सबसे कॉमन है. I faced many problems. Hardships, it's a very nice term. Hardships. Yeah, I encountered many hardships in my life. फिर एक टर्म होता है आपका adversities, कठिनाइयां, adversities. So इसे कहते हैं रेंज. Adversities. मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, एक और मैं चीज बोलता हूं आपको. सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. या तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. You have to do hard work to get the success. क्या ये सबसे आसान वर्जन है? ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन क्या इसमें वोकैब की और ग्रामर की कोई एक्स्ट्रा रेंज आप ऐड कर सकते हो? Like you told me hardship I can use. नहीं, वो हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट हार्डशिप नहीं हो सकता. चलो मैं बताता हूं. यू हैव टू बी डिलिजेंट इनफ इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सक्सेस इन योर लाइफ. अब देखो, जहां आपने टू लगाया वहां पे मैंने इन ऑर्डर टू लगाया के उद्देश्य से, है ना. इन ऑर्डर टू मैंने अकम्प्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया. अकम्प्लिश सक्सेस, ठीक है ना. और यू हैव टू बी डिलीजेंट. डिलीजेंट मेहनती को बोलते हैं. आपको मेहनती होना पड़ेगा. यू हैव टू शो डिलीजेंस. आपको मेहनत दिखानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सक्सेस इन योर लाइफ. इसे कहते हैं रेंज.
हम्म, तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आपको 6 मिनट दिया मैंने, जो आपने आंसर दिए, क्योंकि उसमें मुझे फ्लुएंसी कम लगी, यू वर लुकिंग बिट कंफ्यूज्ड, यू वर नॉट इन अ फ्लो। उसमें मुझे ग्रामेटिकल रेंज की कमी लगी, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर भी था। वोकैबुलरी बहुत अच्छी, कुछ अच्छी इन द सेंस की अच्छी बुरी तो नहीं होती, खैर ये होते हैं कुछ एकेडमिक वर्ड्स, ज्यादा बेहतर शब्द, academic words, या yes, yes, yes. एक होते हैं लेस कॉमन, एक होता है मोर कॉमन हम्म, वर्ड्स। थोड़े लेस कॉमन, ज्यादा एकेडमिक वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। स्पीकिंग के 4 क्राइटेरिया होते हैं, स्पीकिंग के और राइटिंग के भी। स्पीकिंग के होते हैं फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी एंड हम्म, कोहेरेंस, कोहेरेंस होता है आपका आंसर आपस में कितना कनेक्टेड है, आप मैचिंग वगैरह। या वो लाइनें कितनी कनेक्ट हो रही हैं। सो फ्लुएंसी नहीं है, कोहेरेंस फिर भी ठीक था। हम्म, एक होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंडियंस का ऐसा ही होता है, सो दैट्स प्रीटी ओके। अंग्रेजों जैसा बोलने की जरूरत नहीं है जानबूझ के। लेकिन बाकी के 2 क्राइटेरिया हैं, लेक्सिकल रिसोर्सेज यानी कि वोकैबुलरी, एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो इन 2 एस्पेक्ट्स में जब आप इंप्रूव करोगे, तो जो मैंने अभी आपको बैंड स्कोर 6 6.5 कहा है, वो 7 7.5 हो जाएगा। सो यू हैव टू इंप्रूव इन दीज एस्पेक्ट्स। तो ये चीज, अच्छा, राइटिंग में क्या डिफरेंट होता है? जीआरए, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, राइटिंग में भी रहती है, लेक्सिकल रिसोर्सेज राइटिंग में भी रहते हैं। फ्लुएंसी देखो बोलने में होती है फ्लुएंसी, राइटिंग में फ्लुएंसी नहीं होती। वहां पे कोहेरेंस कोहेजन होता है, यानी कि आप जो आइडिया डेवलप कर रहे हो, उसमें जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, सेंटेंसेस आपस में कितना कनेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या कनेक्टर्स आप यूज कर रहे हो, आपकी राइटिंग कितने अच्छे फ्लो से चलती है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। सो दैट इज कोहेरेंस कोहेजन। 3 हो गए। और चौथा क्या होगा? टास्क रिस्पॉन्स, टास्क अचीवमेंट। टास्क 1 के केस में टास्क अचीवमेंट होता है, टास्क 2 के केस में टास्क रिस्पॉन्स। जो पूछा था आपने वो वही जवाब दिया है, वही लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये 4 क्राइटेरिया आपके राइटिंग में होते हैं। तो काफी हद तक एक तरह से 3 क्राइटेरिया तो सिमिलर ही हैं। स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है, जो कि आपको बोलना होता है। राइटिंग में वो चीज चली जाती है, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी नहीं होती, वहां पे कोहेरेंस कोहेजन और टास्क अचीवमेंट आ जाता है। ओके, सो ये मैंने आपको एक मोटी मोटी सी बात बता दी। और जहां तक बात है रीडिंग की और लिसनिंग की, या पूरे आइल्स की ही, वोकैबुलरी प्लेज अ मेजर रोल, vocabulary, वेरी right? सिग्निफिकेंट रोल। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं मेरे जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, कि अगर एक इमारत बनानी है तो 3 4 चीजें ऐसी हैं जो चाहिए ही चाहिए, जिसके बगैर मतलब काम शुरू ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सीमेंट रेत चाहिए ही चाहिए, आपको सरिया चाहिए ही चाहिए, आपको ईंटें ब्रिक्स चाहिए ही चाहिए। तो ये एक तरह से जरूरी इंग्रेडिएंट्स है, जिनके बिना इमारत बनेगी नहीं। तो बनेगी। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज या आइल्स जो है हमारा, उसके लिए 3 चीजें चाहिए, CVG, कंटेंट, वर्कैब, ग्रामर। कंटेंट, वर्कैब, ग्रामर। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का कंटेंट, उसका जवाब, आइडिया होना चाहिए आपके पास। आइडिया नहीं होगा तो ये चीज मैटर नहीं करती कि उसके बाद तुम्हारे पास क्या वोकैबुलरी है या क्या ग्रामर है। जब आइडिया ही नहीं है तो जवाब ही कहां से देंगे? राइटिंग लिखने बैठोगे, कोई टास्क लिखने बैठोगे, आइडिया ही नहीं है, आइडिया होना चाहिए, है ना? आइडिया पहले होगा, फिर उसके बाद उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए फिर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाने के सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चाहिए। और जब वो सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो जिनसे जुड़ के बनेंगे वो होंगे वोकैबुलरी, फ्रेजेस। तो वो लेक्सिकल रिसोर्स हो गए आपके। तो इन 3 चीजों पे जब एक बच्चा ग्रेजुअली काम करता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करता है, और साथ में वो अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है, तो जो भी उसका बैंड्स को रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका गोल होता है, वो धीरे धीरे अचीव कर लेता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मुझे समझ में आया, कि अगर इस लेवल पे आप एक राइटिंग लिखते हो, आपका 6 बैंड आएगा। आप स्पीकिंग दे रहे हो, आपका 6 6.5 बैंड आएगा। आपका रीडिंग में 6 बैंड आएगा, और आपका लिसनिंग में 5.5 बैंड है। तो अभी ओवरऑल देखें तो आपका, आपने जो शुरू में कहा था 5.5 और 6, आपका ये बैंड स्कोर है। और चाहिए हमें 777 8। 777 right? मेरे ख्याल से दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई you came to our mobile application, or you communicated with us, or you want classes in order to improve your band score from 5.5 to 77778. So Vijay, making the ideas, I am not getting the ideas how to
means speak about that or how to write about that. That's that's a skill. That's a skill. You have to work upon that. हर एक चीज में थोड़ा टाइम लगता है. पता है हमारी एजुकेशन में we never needed this thing. We never needed to answer such kind of questions, right? We never needed to speak for 2 minutes on a topic after making notes for 1 minute. So it was not needed. Whatever was needed, we did that. We became better in that. But now this is needed, so you have to gradually improve over this skill. Okay. So you tell me, have you set any goal for yourself? Okay, मुझे इस मंथ में एग्जाम देना है, मुझे ये एग्जाम देना है और इसमें मुझे 777 चाहिए. कोई गोल रखा है कि मुझे इस ईयर में कनाडा पहुंच जाना है या समथिंग लाइक दैट? Yeah, I'm planning to attend that exam in April. Okay, okay. फिर तो अच्छा खासा आप टाइम लेके चल रहे हैं. Yeah, I'm giving time myself because if I will not give a time, I can't get that numbers. विजय, यहाँ मैं एक सलाह दूंगा, अपने अनुभव से आपको एक सलाह दूंगा. जब हम किसी चीज के लिए ज्यादा टाइम दे देते हैं ना, तो वो हमें नुकसान भी करती है चीज. हम वो ज्यादा टाइम जो हमने दे दिया उसको भर ही देते हैं, उसको यूज कर ही लेते हैं फिर हम. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई काम दूं, मैं आपको काम दूं और मैं आपको कहूं विजय ये काम मुझे परसों चाहिए. तो परसों चाहिए ना, बेशक आज का दिन आप करोगे मस्ती, लेकिन कल के दिन में आप पे प्रेशर आने लग जाएगा, क्यों हो, अब एक ही दिन बचा है, अब मैं काम करके देना है, और मे बी आप कल के दिन में वो काम कर लोगे. लेकिन अगर मैं कहूं कि विजय मुझे ये काम एक हफ्ते में चाहिए, तो पता क्या होगा, फिर आप 5 दिन मारोगे मस्ती और जब वो फाइनल वक्त पास आने लगेगा तब आप थोड़ा सीरियस होने लगोगे और आखिरी के 1-2 दिनों में आप काम करोगे. तो उसका ये भी एक डिसएडवांटेज है, जब हम अपने आप को ज्यादा वक्त दे देते हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं शुरू में. तो मेरी ये रेकमेंडेशन है विजय आपको कि अभी आपका जो बैंड स्कोर लेवल है वो 5.5-6 है. आप अभी तो दिसंबर है, यानी एक तरह से लगा लो कि दिसंबर खत्म हो गया. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब 4 महीने बाद की बात मत करो. आप अपने आप को कहो कि मुझे 2 मंथ्स में 777-8 पे आना है. ओके. अपने माइंड को, माइंड हैक बोलते हैं, अपने माइंड को कहो कि मुझे फेब में ही 777-8 पे आना है. क्योंकि अपने माइंड को आपको होगा ना कि अप्रैल में आना है, तो फिर वो फेब तक तो वो सीरियस ही नहीं होगा, फेब तक तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाएगा ही नहीं. राइट. गेटिंग माय पॉइंट? उतना ही वो डिले हो जाएगा. तो फेब के हिसाब से लेके चलोगे ना, अगर उसमें कुछ भी हमें लगता है कि पीछे चल रहे हैं या अभी एग्जाम देने की हालत नहीं है, तो हमें क्वेश्चन रख सकते हैं. और वो क्वेश्चन सीधा 2 महीने का नहीं रखेंगे, 15 दिन का क्वेश्चन रखेंगे. 15 दिन बाद फिर देखेंगे कि अगर कुछ कमी है, फिर ऐसा नहीं कि फिर एकदम से 15 दिन का, फिर एक हफ्ते का क्वेश्चन रखेंगे. तो इस तरह से काम करेंगे हम, रादर की एक एकदम कह दें कि भाई एग्जाम ही 6 महीने बाद देना है, तो फिर ऐसे में सीरियसनेस नहीं आ पाती. ओके. ठीक है ना? तो एक तो ये चीज है. दूसरा, 777-8 देखा जाए कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है विजय. there are people, there are boys and girls who achieve this score quite easily, but उसके लिए जो हमारी स्कूलिंग और जो हमारी प्रीवियस एजुकेशन है वो काफी उच्च दर्जे की, पहला, या हमारी जो परवरिश है, जिस तरह के पेरेंटिंग, उसमें इंग्लिश होना बड़ा जरूरी है. जरूरी है. राइट. तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज बचती है कि आइल्स के पैटर्न को समझना, उसके हिसाब से अडेप्ट करना, दैट्स इट. सीखने के लिए ये बचता है. लेकिन जो आपका लेवल है, जो ज्यादातर इंडियंस का लेवल होता है, दे हैव टू फर्स्ट अकम्प्लिश अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. उनको पहले तो इंग्लिश के एक लेवल पे आना पड़ता है, इंग्लिश की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे आना पड़ेगा, इंग्लिश की एक अच्छी वोकैबुलरी के लेवल पे आना पड़ेगा. ठीक है ना? इंग्लिश को लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा. हम लोग पंजाबी गाने सुन के बड़े हुए हैं, हिंदी गाने सुन के बड़े हुए हैं, आज इंग्लिश लैंग्वेज हमें सुनने पड़ रही है टेस्ट में. हम लोग हिंदी देहाती बोलते हुए बड़े हुए हैं, आज इंग्लिश में बात करनी है. हम लोगों ने पंजाब केसरी के अखबार पढ़े हैं, रंगीन अखबार पढ़े हैं, रंगीन पेजेस पढ़े हैं, आज हमें इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, जो कि बड़े ट्रिकी भी होते हैं, औखे होते हैं, मुश्किल होते हैं. और कौन सी चीज बची आखिरी? लिखना. कब लिखा है हमने इंग्लिश में कब लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में? आज हमें एक ऐसे लिखना है, वो भी 40 मिनट के अंदर, ऊपर से 40 मिनट का टाइम भी है. सो वी हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग एंड इट टेक्स टाइम. वो अलग बात है, हम अब पीछे जाके नेचुरली उस इंग्लिश को वैसे नहीं सीख सकते जैसे हमें हिंदी आई है या हमारी खुद की लैंग्वेज आई है. तो हमें अब एक
अननेचुरल एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसमें रोज कुछ वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं, अपने कानों को कुछ इंग्लिश सुनवा रहे हैं, लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो रहा है, अपनी जुबान से इंग्लिश बुलवा रहे हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लो आ रहा है, ठीक है ना, अपने हाथ से कुछ राइटिंग कर रहे हैं। अब वो एक नकली माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिसे प्रिपरेशन बोलते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, क्योंकि अब असली तो पॉसिबल है नहीं कि उस तरह से सीखा जाए। तो प्रिपरेशन एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है जहां तेजी से आप आइल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एसेज देखते हो, एक्सपर्ट्स के लिखे हो, और धीरे धीरे वैसा लिखना सीखते हो, और एक मेंटर आपको फीडबैक देता है कि ये गलत है, इस पे काम करो, इस पे काम करो। आप इंटरव्यूज देते हो, बहुत सारे इंग्लिश बोलते हो, और उसमें धीरे धीरे करके आपकी ग्रामर अच्छी होती है, आपकी वोकैब अच्छी होती है। आप लिसनिंग करते चलते हो, अपनी गलतियों में काम करते चलते हो, धीरे धीरे आपको एक्सेंट समझ आने लगता है। लिसनिंग में क्यों गलत होते हैं? आपने कहा ना मेरे आई हैड 20 आंसर्स राइट, 20 वर रॉन्ग। तो वो 20 इसलिए गलत थे, ज्यादातर का तो ऑडियो ही नहीं समझ में आया आपको कि वो बोल क्या रहे थे। और वो क्यों नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आता भी उनका एक्सेंट, ठीक है ना। अभी देखो मैं कुछ बोलूंगा, आप मुझे बताना मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। विजय, हाउ आर यू तुझे? हाउ आर यू तुझे आ रहा है? मैंने पूछा है हाउ आर यू टुडे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उनका एक्सेंट कई बार ऐसा ही लगता है हमें, वो बोलते कुछ है, हमें समझ में कुछ आता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाउ आर यू तुझे, हाउ आर यू टुडे। वो साउथ बोलते हैं, हमें फाउथ पता नहीं वो इस तरीके से सुनता है, ठीक है ना। वो बोलते हैं डन नो, वो होता है आई डू नॉट नो और आई डन नो, वो ऐसे बोल देंगे। वो कहेंगे गिव मी, वो होता है गिव मी। वो कहेंगे लेट मी, वो होता है लेट मी। वाना, सो उनके अपने स्लैंग्स होते हैं, उनके अपने स्टाइल होते हैं। हम कहते हैं प्रॉब्लम, वो कहते हैं प्रॉब्लम। हम कहते हैं गराज, वो कहते हैं गराज। उनका समझ ही नहीं आएगा। हम कहेंगे लाइब्रेरी, वो कहेंगे लाइब्रेरी। तो उनके जो उच्चारण है, उनके जो एक्सेंट है, हमारे कान उसके लिए रेडी नहीं है, उसने कभी सुना ही नहीं। अब हमें उसकी आदत डालनी होगी, जो कि आईएलटीएस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। हमें 8 बैंड लिसनिंग में चाहिए, जो 777-8 का 8 है वो लिसनिंग में चाहिए। सो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि एकदम से आपके वो स्किल आ जाएं या एकदम से सब कुछ इंप्रूव हो जाए। बट इट इज पॉसिबल टू ग्रेजुअली डेवलप दो स्किल्स। धीरे धीरे करके वो डेवलप हो सकते हैं, और उसके लिए एक करिकुलम लगता है, एक पैटर्न लगता है, एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन लगती है, जो कि आप या तो फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाके कहीं से ग्रहण करें, या फिर आजकल जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं, हमारे खुद के चलते हैं, वहां से आप ग्रहण करें। सो ये है एक कंक्लूसिव सी बातचीत। अब पॉइंट ये है कि आपके पास कितना वक्त है एक दिन में पढ़ने का, और फिर आप वो वक्त कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। ये दो चीजें बहुत मैटर करेंगी। सो विजय, डू यू गेट इनफ टाइम दैट यू कैन स्पेयर 3-4 hours at least a day? Right now I'm giving 2 hours per day. Okay. And how are you preparing? Like, who is guiding you? What's the content? What's the curriculum? What's the plan? What's the sequence? Day wise कर क्या रहे हो? Exactly कैसे करते हो? भी तो मैं रीडिंग पे मेन फोकस है अभी तो, क्योंकि विदाउट किसी के उससे तो मैं अभी रीडिंग के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट एक रीडिंग के पेपर लेके उसको जस्ट सॉल्व करता हूँ। तो या आई एम गेटिंग 30, 32, sometimes 33 like this. Okay. So just वही अभी एक प्रैक्टिस चल रहा है, दो टेस्ट रोज कर देता हूँ मैं। Okay. थोड़ा लिसनिंग का भी लोड करके जस्ट सुन के उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। But you are not receiving any mentorship from any expert, right? Not yet. So आपने हमसे जो संपर्क किया वो एग्जैक्टली किस लिए? सिर्फ इस कंसल्टेशन के लिए जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, या आपने कुछ क्लासेस लगानी है मुझे? क्लासेस, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप जहां मेरे जैसे और भी लोग 777-8 की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक एक्सपर्ट है, एक मोटिवेशन है, एक रोज का करिकुलम है कि मेरा टास्क चेक होगा, मेरी स्पीकिंग का इंटरव्यू होगा, मुझे फीडबैक मिलेगी, एक मेरी जूम क्लास लगेगी। सो डू यू वांट सच अ लर्निंग और सच एन एनवायरनमेंट, और सिर्फ आपके कंसल्टेशन लेके एक सेल्फ स्टडी करना चाहते हो? सो व्हाट आर यू एग्जैक्टली लुकिंग फॉर? नो, मैं तो कोचिंग ही चाहिए, क्योंकि विदाउट कोचिंग आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट 8,777. You know what? Without coaching, it is possible to improve your band score 0.5, even 1 band, if you prepare hard, if you do it in a right way for 3, 4, 5 months. But 777-8 is bit technical. You have to be very focused. You have to be
to the point, and you don't have a scope to waste your time or do the things in a wrong way. जो कि गलत करते चले गए तो पता लगेगा ओहो ये तो मैंने किया ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूं, आपने कहा है ना 2 महीने से. आप मुझे बताएं क्या आपने कोई वोकैब कलेक्शन की कोई कॉपी अलग से लगा रखी है? वोकैब कलेक्ट करते हो आप अलग से? हाँ, मैं एक रोज 4 to 5 वर्ड्स प्रिंट करके अपने पास रख लेता हूँ और उनको पूरा दिन देख के मतलब देखता हूँ उनके सिनोनियम्स क्या हैं, एंटोनियम्स क्या हैं, ऐसे. अच्छी बात ये है कि आप वोकैब करते हो, लेकिन इसमें कमी कहाँ है? 4 to 5 is a very low number in terms of per day vocab workout. तो 4 to 5 means कितना हो जाएगा? 150 words a month. 150 वर्ड्स अ मंथ. तो आइल्स की प्रिपरेशन ही 3-4 महीने की होती है ढंग से कर ली जाए तो पूरे आइल्स प्रिपरेशन में आप सिर्फ 500-600 वर्ड करोगे इस हिसाब से. जबकि मैं जो एक डेडलाइन लेके चलता हूं स्टूडेंट्स के लिए 50 वर्ड्स पर डे. और वो 50 वर्ड्स आते कहां से हैं? वो आते हैं जो रीडिंग आप उस दिन में कर रहे हैं उस रीडिंग पैसेज से, जो राइटिंग्स आप एक्सपर्ट्स की पढ़ रहे हैं, एसेज पढ़ रहे हैं कुछ भी वहां से, जो स्पीकिंग के आंसर्स आप एक्सपर्ट्स के पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वहां से. तो वहां से 50 वर्ड आते हैं. ऐसे नहीं कि रैंडमली पिक करने हैं कहीं से या किसी डिक्शनरी से उठाने हैं, नहीं. आपको वो एक कॉन्टेक्स्ट से निकालने हैं, उसके मीनिंग को, उसके एप्लीकेशन को समझना है और उसके बाद आपको उस पर एग्जाम्पल्स बनाने हैं. सो इट हैज टू बी डन. सो 50 वर्ड्स पर डे. मैं कहता हूं 5 दिन पढ़ो, 2 दिन मत पढ़ो. 5 दिन पढ़ो, 2 दिन मस्ती करो, रिक्रिएट करो अपना माइंड, रिफ्रेश करो. 5 दिन डट के मेहनत करो, कुछ और मत करो, और 2 दिन डट के मस्ती करो, कुछ और मत करो, मेहनत मत करो. ठीक है ना? तो 5 डेज करो, 250 वर्ड्स अ वीक. 4 वीक होते हैं एक महीने में, 1000 वर्ड्स अ मंथ. और 3 महीने की मैं एक एवरेज प्रिपरेशन लेके चलता हूं 3000 वर्ड्स अ मंथ. और जिसने 3000 वर्ड्स कर लिए ढंग से, उसके लिए ये 777, 6.5 बैंड, 7 बैंड कुछ नहीं रह जाता. That's pretty easy, क्योंकि उसका बेस आ चुका है. रीडिंग में सारा खेल ही वोकैबुलरी का है. कीवर्ड मैच होते हैं, लोकेशन मिल जाती है, वहां पे वोकैब की वजह से कई बार आंसर समझ में नहीं आ रहा होता. लिसनिंग में क्या पता वोकैब की वजह से आंसर ना समझ में आए. राइटिंग में वोकैबुलरी नहीं आ रही होती, माइंड में आइडियाज तो आ रहा होता है. स्पीकिंग में कई बार शब्द ही नहीं मिल रहे होते हैं, अब हम क्या बोलें. सो वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो वो आपने कहा कि 2 महीने में 4-5 के एवरेज, तो कहीं ना कहीं वो 2 महीने में आ गया होगा 200-300 वर्ड्स. और वो भी डिपेंड करता है उसमें से कितने याद होंगे और कितने आप भूल चुके होंगे. सो दैट इज नॉट गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर रीडिंग इंप्रूवमेंट. तो उसका आप बहुत ज्यादा फायदा आप ले नहीं पाओगे रीडिंग में. राइट. या वो स्पीड इतनी स्लो है कि उस हिसाब से तो फिर साल लग जाएगा आपको किसी लेवल पे आने में. और इतने में तो मोराल ही डाउन हो जाएगा. पॉइंट ये है, इतने में तो आप कहोगे यार इतनी रीडिंग कर ली, स्कोर नहीं आ रहा. जबकि आना तभी है स्कोर जब रीडिंग में आपका लेवल इंक्रीज होगा. तो ये सारी चीजें हैं विजय जिन पे काम करना होगा. आते हैं बैंड, आते हैं 777-8 आते हैं. मैं ईमानदारी से बता रहा हूं बहुत सारे लोगों के नहीं भी आते, क्योंकि बहुत सारे लोग जोश में शुरू तो कर देते हैं कनाडा जाने की चाह में, या अपने एरिया में फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, कुछ भी करो कि जाएंगे, दूसरे की देखा देखी रीस तो कर लेते हैं, लेकिन वो चीज वो शिद्दत नहीं लगा पाते. आइल्स प्रिपरेशन के लिए जो एक डेडिकेशन देनी पड़ती है वो नहीं कर पाते, तो नहीं आ पाता उनका 777-8. एक साल 2 साल मेहनत लगा के छोड़ देते हैं लोग. तो आपके केस में अच्छी बात ये है अभी तक कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं आपने लगाया इस पे. दूसरी बात, अभी कोई आइल्स का एग्जाम नहीं दिया, मोराल बिल्कुल ओके है. अभी उम्मीद है कि मैं पहले एग्जाम में 777-8 निकाल सकता हूं, वरना लोग 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम भी दे देते हैं, तब भी उनका 777-8 नहीं आ पाता. तो शुरू से ही प्रिपरेशन के लेवल को अच्छा लेके चलो, सही तरीके से सीखो. बच्चे क्रैम करने की कोशिश करते हैं, एसेस को क्रैम करते हैं, रेडीमेड लाइनें क्रैम करने की कोशिश करते हैं, क्यू कार्ड क्रैम करने की कोशिश करते हैं. भाई क्रैमिंग हो सकता है 5.5-6 बैंड तक तो पहुंचा दे बच्चे को, लेकिन 777-8 नहीं दिलवा सकती क्रैमिंग. और पॉसिबल ही नहीं है इतना कुछ क्रैम करना. आप 100 क्यू कार्ड क्रैम करोगे, वहां पे 101वां आ गया तो फिर क्या करोगे? आप 50 एसए की स्टेटमेंट क्रैम करके चले गए, वहां 51 नंबर आ गई तो. सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट्स बेटर टू कवर एवरीथिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, हाउ टू अप्लाई इट. चाहे वो आइडियाज इंप्रूव करने हो, चाहे वो वोकैब इंप्रूव करनी हो, चाहे वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और रेंज इंप्रूव करनी हो, जस्ट लर्न इट.
दिस इंग्लिश इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. बिजनेस करोगे इट विल हेल्प यू, जॉब करोगे इट विल हेल्प यू, दुबई में रहोगे, इंडिया वापस आओगे, कनाडा निकलोगे, वेर एवर यू विल गो, इंग्लिश इज गोइंग टू हेल्प यू. इंग्लिश इज गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी. सो दिस इज समथिंग यू विल नीड थ्रू आउट योर लाइफ. तो जो अभी लेवल है वो एक काम चलाऊ लेवल है. लेकिन 777-8 पे आने का मतलब है एक बहुत अच्छे इंग्लिश के लेवल पे आना और जिंदगी भर के नाम का, और ऊपर से कनाडा की पीआर पॉसिबल होना. सो ये सारी मोटिवेशन बना के रखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ पैरेलल सब कुछ चलेगा. विजय, राइट. एनी अदर क्वेश्चन विजय फ्रॉम योर साइड? तो अभी मेरे को कौन सा पैकेज आपका लेना चाहिए सर? विजय, हमारे 3 पैकेज होते हैं. जैसे मैंने कहा ना, एवरेज मैं टाइम लेके चलता हूं 3 महीने का. एक 3 मंथ का पैकेज है, एक 2 मंथ का है, एक 1 मंथ का है. 1 मंथ का पैकेज वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्होंने तैयारी वगैरह कर रखी है, जिन्होंने एक आधा एग्जाम पहले दे भी रखा है, थोड़ा बैंड स्कोर कम रह गया था, तो वो ब्रश अप करने आना है या फाइनल फीडबैक लेने आना है या एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने आना है, तो वो 1 मंथ का पैकेज ले लेते हैं. ठीक है ना? और कुछ बच्चे होते हैं स्पेसिफिक जो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा तो पहले से पढ़ रखा है और बस वो 2 मंथ का पैकेज ले लेते हैं. कुछ होते हैं जो एक तरह से 0 से शुरू करना चाहते हैं कि नहीं, हम एक सिस्टमैटिक वे में पूरी अप्रोच लगाना चाहते हैं, सारा बेसिक समझेंगे आइल्स का, उसके हिसाब से धीरे धीरे सारी कलेक्शन करेंगे. उनके लिए फिर मैं 3 मंथ का पैकेज रेकमेंड करता हूँ. ओके, ठीक है ना? और इसके जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहते हैं उसके बारे में आप रजत सर से बात कर सकते हो. इसमें ऑब्वियस वो एक सिस्टम सा रहता है कि ज्यादा मंथ का लोगे तो वो आपको ज्यादा थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ता है, कम का लोगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है आपको. तो इसके बारे में आप रजत सर से बात कर सकते हो. बट इन योर केस, जैसे मैंने कहा कि 2 महीना माइंड में आप लेके चलो कि 2 महीना तो मैंने देना ही देना है, बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, या अभी से 3 महीने रख लोगे ना तो फिर माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि 3 ही महीने में करना है मुझे फिर तो. राइट. आई एग्री विद दिस. एनी अदर क्वेश्चन विजय? नो सर, बाकी तो और तो कुछ नहीं है. जस्ट रीड, और जो होगा मीन्स वो तो पैकेज के ऊपर डिपेंड होगा कि क्या फैसिलिटी मिलेगी. नहीं, फैसिलिटी देखो, फैसिलिटी 1 महीने और 3 महीने वाले पैकेज में जो हमें डिलीवर करना है 1 वीक के अंदर आपको, वो सब में बराबर है. बस ड्यूरेशन का डिफरेंस है ना उसमें. तो ओके, ठीक है ना, कि हमें कितनी राइटिंग चेक करनी है वो वीक वाइज डिसाइडेड है कि 1 वीक में हमें इतनी राइटिंग चेक करनी है आपकी, इतने स्पीकिंग के इंटरव्यूज लेने हैं 1-on-1, इतने जूम सेशन लगने हैं, रोज का एक का जूम सेशन होता है एक टाइम पे, और मॉक टेस्ट होता है सैटरडे को. और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सकते हैं अलग से, अपने जो भी आपके मास्टर ट्रेनर रहेंगे उनसे आप बात कर सकते हैं. और मेरे खुद का बनाया हुआ सारा वीडियो ट्यूटोरियल है अवेलेबल. मुझे उसको बनाने में 4-5 महीने लगे थे. उसका फायदा ये है कि वो मेरा बनाया हुआ है, वो मेरे ही लेक्चर है, एक तरह से मेरी सोच है, मेरे 15 साल का अनुभव का निचोड़ है उनके अंदर. तो वो आप अपनी सहूलियत के टाइम के हिसाब से कभी भी देख लो. आप रात को जग रहे हो तब देख लो, सुबह कोई किसी को पढ़ना पसंद तब देख लो, रोक के देख लो, पीछे कर लो उसको दोबारा. तो वो लेक्चर्स हैं एक तरह से. उन लेक्चर्स को देख के कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, वो सारा उन लेक्चर्स में है. वो लेक्चर्स में जो आपने किया उसमें जो कंफ्यूजन आई उसको लिख के रख लिया. उन लेक्चर्स को देखने समझने के बाद जो आपने लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, उनमें जो कंफ्यूजन आई, जो प्रॉब्लम आई, वो लिख के रख ली. और फिर जूम सेशन में अपने मेंटर के साथ आपने वो प्रॉब्लम्स डिस्कस की. ओके, ये चीज ऐसे चलती है. जूम सेशन जो होता है वो एक तरह से 7-8 बच्चों का एक ग्रुप क्लास होती है. लेकिन जो राइटिंग चेक होती है वो 1-on-1 होती हैं. यानी कि बस एक टीचर आप ही से बात कर रहा है और आपकी राइटिंग की फीडबैक आपको दे रहा है कि देखो ये लाइन ऐसे नहीं आनी थी, ये गलत है, इसमें कोहेरेंस कोहेशन नहीं आया, इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है. और जो स्पीकिंग इंटरव्यू होते हैं वो भी 1-on-1 होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस तरह से. ओके. जूम सेशन ग्रुप होता है. तो जूम सेशन डेली होता है और वो डेली होता है और इंडियन टाइम के हिसाब से वो इवनिंग में ही होता है, रात में ही होता है. क्योंकि जो ये आपका केस है ना, इस वक्त ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग ले ही जीटी वाले स्टूडेंट्स रहे हैं. अच्छा. और जीटी वाले स्टूडेंट्स का मतलब जो लोग जॉब में हैं. जॉब में है तो इंडियन जो इंडिया में है लोग वो भाई जॉब में रहते हैं सारा दिन, वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो रात में अवेलेबल हो पाते हैं. तो इसलिए हमने उसका नाइट का ही टाइम रखा है. इंडियन टाइम के हिसाब से 8 o'clock का वो टाइमिंग होता है. और
ऐसा भी नहीं है कि मैंडेटरी के आपको हमेशा वो जूम सेशन लगाना है. इन केस यू हैव क्वेरीज, यू कम एंड अटेंड द जूम सेशन. इन केस किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पाते तो किसी और वक्त में अपने टीचर से बात करके वो वाली क्वेरीज आप किसी और वक्त में ले सकते हैं. टीचर से डिस्कस करके. वो टीचर की टाइम अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए उस टाइम पे. दिस इज हाउ इट हैपेंस. ओके, तो मींस जनरली जूम क्लास डेली होता है? हाँ, वो डेली है. वो डेली है. सैटरडे को नहीं होती. सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है. आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आपके इंटरव्यूज होते हैं सैटरडे को, सब जितना भी ग्रुप में बच्चे होते हैं उनके. और संडे छुट्टी. मंडे को आपको रिपोर्ट मिलती है और जो भी जूम आपने मॉक टेस्ट में किया उसकी असेसमेंट मिलती है, राइटिंग की फीडबैक मिलती है आपको. उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको आई वो आप डिस्कस करते हो. तो वो मंडे को हो जाता है और फिर पूरे हफ्ते में अगली राइटिंग शुरू हो जाती है, अगले इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं. तो इस तरीके से चलता है. ओके, तो ये जो मॉक टेस्ट आप अवेलेबल कैसे कराते? ईमेल में गूगल और ड्राइव. एप्लीकेशन? गूगल ड्राइव में. गूगल ड्राइव में. ओके. हाँ, देखो 3 सपोर्ट मिलती हैं हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम में. वो मैंने ही डिजाइन किया हुआ है सारा. मैंने 3 तरह की उसमें सपोर्ट रखी हैं. सारी वीडियो लेक्चर सपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी. सारे वीडियो लेक्चर्स मोबाइल एप्लीकेशन पे हैं. ओके, ठीक है ना. सारी पीडीएफ मटेरियल, ई बुक मटेरियल, जो हमारी खुद की किताबें हैं राइटिंग स्पीकिंग की, जितने लिसनिंग के टेस्ट हैं, रीडिंग के टेस्ट हैं, 70+ लिसनिंग टेस्ट हैं, 70+ रीडिंग टेस्ट हैं, वो सारी आपको गूगल ड्राइव में मिलेगी. ओके, सिस्टमेटिक तरीके से नंबर 1 नंबर 2 पूरा एक फोल्डर बना हुआ है. ठीक है. दूसरी सपोर्ट. तीसरी है टीचर सपोर्ट. तो ऐसे ही बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो एक्सेस लेते हैं. ऐसे ही बच्चे हैं जो खाली सिर्फ स्टडी मटेरियल पीडीएफ वाला ले लेते हैं. हमने वो भी ऑप्शन दिया हुआ बच्चों को. और ऐसे ही बच्चे हैं जिनको तीनों चाहिए, क्योंकि उनको मेंटर चाहिए. मेंटर जो रोल प्ले करता है वो कई बार सेल्फ से नहीं हो पाता. ऐसे तो दुनिया जान के वीडियोस यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं. ऐसे तो सारी किताबें कैम्ब्रिज की इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं. थोड़ा सा वक्त लगता है डाउनलोड करके प्रिंट मारने में, बट करना क्या है, कैसे करना है, एक डे बाय स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चलना, इसके लिए एक टीचर बहुत जरूरी हो जाता है. राइट. तो ये 3 तरह की सपोर्ट हमारे ऑनलाइन कोर्स में हम बच्चों को देते हैं. और कोई क्वेरी विजय? और तो कुछ नहीं है सर. अगर हो विजय कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजत सर को बता देना दोबारा कि मुझे एक बार और बात करनी है अश्विनी सर से ही. अभी अच्छा. जैसे ये जो 100 रुपए वाला आपने किया है, इसमें देखो, वी आर कमिटेड टू टॉक टू यू फॉर हाफ एन आवर फॉर अनदर 6 days. देखो जो कमिटमेंट की है हमने, जो है, चाहे वो प्रमोशनल कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट इफ वी हैव कमिटेड तो वो 6 बार और बात करनी है आपसे. एक बार तो मेरी हो ही गई, चाहे फिर वो 30 मिनट की हो या 1 घंटे की हो. ठीक है ना. इवन आई ट्राई कि मैं दोबारा से आपसे बात कर पाऊं इन्हीं दिनों में, अगर कोई आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है. वरना दूसरे भी ट्रेनर एक्सपर्ट्स हैं, मेरे वाइफ हैं खुद, उनसे भी आपकी बात होगी. इंग्लिश में बात करना उनके साथ. और भी है, मनीषा मैम है, सुषमा मैम है. तो ये 6 दिन इस तरीके से, ये 6 बार बातचीत ऐसे होगी. लेकिन अगर वो आपको प्रिपेयर करना है या चीटी का कोर्स लेना है और क्लासेस लगानी है, तो उसके बारे में आप एक बार जरा सर से बात कर लीजिएगा. मैं उनसे बात करूंगा एक बार. ठीक है ना. वो आपसे फीडबैक भी ले लेंगे कि मेरे साथ आपका सेशन कैसा रहा, जो कि अक्सर मतलब रोज होता है. तो बेसिकली आपने कोई वीडियो देखा था विजय, या कहाँ से आपने हमारा एड देखी थी या क्या? आई थिंक सर यूट्यूब में मैंने कहीं पे देखा था आपका. एग्जैक्टली. जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ विजय, मेरे इस तरह से एक्सपर्ट टॉक चलते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ. और जैसे आपका केस है, ऐसे ही सबके अलग अलग केसेस होते हैं. किसी का स्टडी वाला होता है, किसी ने कोचिंग ले रखी होती है, किसी ने 4 एग्जाम दे दिए होते हैं पहले से, कोई फ्रेशर होता है. तो ऐसे वीडियोस वगैरह मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब पे. तो वहां से बच्चों कई बार दूसरे के केस में अपनी ही क्लैरिटी आ जाती है. तो ये भी फायदा मिल जाता है. कई बार उसको लगता है कि नहीं, मैं अपना केस अलग से डिस्कस कर लूंगा, तो बच्चा हमसे कम्युनिकेट करता है और इस तरह के एक्सपर्ट टॉक में मतलब हम उस बच्चे की प्रिसाइज जरूरतों के हिसाब से उसको सलाह देते हैं. जैसे कि मैंने आपके केस में आपको बताया कि आपके केस में क्या होगा. तो दोनों मतलब इस एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाती है. आपको सलाह मिल गई और आपकी तरह की स्थिति में जो भी लोग हैं उनको भी सीखने को मिल जाएगा इस तरह के कम्युनिकेशन से. राइट. तो ठीक है विजय, आज के दिन को कंक्लूड करते हैं. इट्स वीकेंड, इट्स सैटरडे ओवर हियर. तो हम लोगों का हफ्ता आज हम कंक्लूड करके हम भी अब 1.5 दिन हम भी मस्ती मारेंगे आज की शाम, और जो कल का संडे है, और मंडे से फिर दोबारा हम अपने काम पे लग जाएंगे. ओके.
नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच। ओके विजय, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली वी विल कीप कम्युनिकेटिंग, एंड और हम कोशिश करेंगे आपको आपके मकसद पे जल्दी से जल्दी पहुंचाने की। थैंक यू वेरी मच सर। ओके विजय, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड टू। थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर। ओके।